So this is system given in the problem. So in this problem we have to just find out the tension in the cable. So for the sake of convenience we have to just split up this joint, various joint such as joint B and joint D. According to that we have to just draw the forces which is acting on the joint, and after that we have to apply the Lambda step, so that we will get the tension in the respective cables. So first of all, what we have to do here, just I will consider. So for the sake of convenience, let us split up the cables into two parts, at B and at D. तो हमें क्या करना है, एट पॉइंट B और एट पॉइंट D इनको स्प्लिट करना है, इन जॉइंट को हमें स्प्लिट करना है. तो सबसे पहला जॉइंट देखिए B का. So this is the vertical force having magnitude 200 Newton. This is the tension. So I will just nomenclature of this tension in cable, that is T1, T2, T3, and also we know the angle between this force is 60 degree. This is given. Again this one is 30 degree. सिंपल क्या किया है, इस जॉइंट को मैंने सेपरेट ड्रॉ किया है. उस पे क्या क्या फोर्स एक्ट होते हैं, दिस वन, दिस वर्टिकल डाउनवर्ड, दिस केबल BC and this cable BD. Similarly, split this one. So this weight having magnitude 250 Newton. Again this force and this force will be same. Okay, the forces which is acted on BD
is equal. So I will name this tension that is T3, similar to this one, and this will be T4. Now here the angle is 45 with vertical for this angle. Okay, if we consider this one, so I will just draw here vertical angle. So this will be 45. If this angle is 45, inverse angle will be same. So this will be 45. See, यहाँ पे Z फॉर्म हो रहा है, तो जो इनवर्स एंगल है तो वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. तो आई विल से दिस विल बी 45. अगर ये 45 है तो ये कितना रहेगा, this one 45. Okay, after that calculate this angle. This will be 90 degree because it is downward, vertically downward. So with horizontal, the angle between this vertical force and horizontal will be 90 degree. After that, see डायग्राम में देखिए अभी फिर से. अभी ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा फिर. ओके, बिकॉज इनवर्स एंगल्स आर इक्वल और से यहाँ पे Z फॉर्म हो रहा है, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा. सो आई विल राइट हियर दिस एंगल मस्ट बी 60 डिग्री. अभी यहाँ पे देखो एट पॉइंट बी कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4. लामिस थ्योरम अप्लाई होगा यहाँ पे, नहीं होगा. एट पॉइंट सी देखिए कितने फोर्सेस है, हो सकता है. तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे. इसका जो T3 का वैल्यू आएगा तो T3 का यहाँ पे सेम रहेगा. पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में इसको सॉल्व करेंगे. सो राइट डाउन by applying Lami's theorem at C, सॉरी C नहीं है, D है ना, D है, at D. ये आपका D पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है. T3, this force, what is the opposite angle of this 90 plus 45, how much it is, 135. So sin 135 degree, which is equal to, now take T4 divided by sin of, ये एंगल कितना है, 120. So I will write here 120 degree, and last force is 250 divided by sin of 60 plus 45, 105. So we'll get this equation. Just solve this equation by taking first and third term. So therefore T3 divided by sin 135 degree is equal to 250 divided by sin 105. अभी देखो ये कितना आएगा एंगल, 90 आएगा. ये कितना आएगा, ये पूरा 180 आएगा. ये 90 पता है, 60 पता है. ये एंगल आपको 180 में से दोनों माइनस किए तो ये मिल जाता है. कितना आता है वो, 180 minus 90, 60, 120.
180 में से 90 माइनस करना है और 60 माइनस करना है, मतलब 120, 120, 180, 180 में से 120 माइनस किया तो ये एंगल मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू, दिस विल बी, कितना आता है ये एंगल, 30, 30 प्लस 90, 120. So calculate this value. Sin 105, 250 by sin 105 into sin 135 degree. Just calculate this one. How much it is? Yes, 183.01 Newton. सिमिलरली अभी सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को हमें लेना है, विच इज इक्वल टू T4 डिवाइड बाय साइन 120 विच इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाय साइन 105 डिग्री. ये टर्म T4 बाय साइन 120 इज इक्वल टू 250 बाय साइन 105. T4 is equal to 250 divided by sin 105 degree into sin 120 degree. Yes, what is the answer? Yes, 224.14. 224.14 Newton. ठीक है, इसके बाद अभी क्या करना है आपको, एड जॉइंट बी आपको सॉल्व करना है, जॉइंट बी आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे तो 4 फोर्सेस है, तो कैसे डिटरमाइन करने का, आपको इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशन पता है. क्या कंडीशंस है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0. तो वो 3 कंडीशंस हमें यहाँ पे अप्लाई करने हैं, वेदर यू अप्लाई द समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एंड समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो वो हमें अप्लाई करने हैं यहाँ पे. तो राइट डाउन नाउ consider the force system at B. अभी B पॉइंट पे जो फोर्स सिस्टम है उसको आपको कंसिडर करना है, ये वाली. तो यहां पे मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ये जो फोर्सेस है इनको रिजॉल्व करता हूं इनटू 2 कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अभी यहां पे देखो, ये जो एंगल है इस फोर्स का किसके साथ फॉर्म हुआ है, y एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म हुआ है. तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, कॉस रहेगा. वर्टिकल कंपोनेंट y के साथ एंगल फॉर्म हुआ है तो वर्टिकल कंपोनेंट कॉस रहेगा, हॉरिजॉन्टल साइन रहेगा. और x एक्सिस के साथ फॉर्म हुआ है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस रहेगा, कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा रहेगा. तो यहाँ पे y एक्सिस के साथ एंगल अपना फॉर्म हुआ है, तो इसके लिए ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है तो वो रहेगा आपका cos थीटा, T2 into cos 30. सिमिलरली हॉरिजॉन्टल T2 sin 30. सेम T3 को भी आपको रिजॉल्व करना है 2 कंपोनेंट में. This is the vertical component, this is horizontal. Similarly, अभी इस फोर्स का भी जो एंगल है किसके साथ फॉर्म हुआ है आपका, y एक्सिस. वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, cos थीटा, f cos थीटा. f कितना है, T3 है, T3 cos 60 और हॉरिजॉन्टल T3 sin 60.
Now, by applying the equilibrium condition, first equilibrium condition, that is, take summation of Fy is equal to 0. This is the first equilibrium condition. तो जो भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका आपको समेशन लेना है एट पॉइंट बी. अभी वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से है देखो, यहाँ पे t cos 30 है, अपवर्ड है, पॉजिटिव. आफ्टर दैट t cos 60 है, डाउनवर्ड है, नेगेटिव. और तीसरा जो है 200, वो भी डाउनवर्ड है, वो नेगेटिव है. सो आई विल राइट हियर therefore T2 cos 30 degree minus T3 cos 60 degree minus जो फोर्स है आपका 200 न्यूटन which is equal to 0. अभी आपको T3 की वैल्यू पता है, यहाँ पे T3 फाइंड आउट किया था आपने 83.01, वही पुट कीजिए. सो यू विल गेट देयरफॉर T2 cos 30 minus 183.01 cos 60 degree minus 200 is equal to 0. So T2 is equal to 183.01 cos 60 plus 200 divided by cos 30. Just calculate, you will get the value of magnitude of T2. कितना आता है आंसर? यस 330 320 336.60. The value of T2 is 336.60 Newton. Take summation of fx is equal to 0. अभी जो भी at point B जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन करना है. वर्टिकल फोर्सेस की कौन से देखिए यहाँ पे डायग्राम में T1 है जो लेफ्ट साइड को जा रहा है तो माइनस नेगेटिव, उसके बाद T2 sin 30 दिस विल पॉजिटिव एंड T3 sin 60 दिस विल आल्सो पॉजिटिव. तो इनका समेशन लेना है आपको. सो देयरफॉर माइनस T1 प्लस T2 sin 30 T3 sin 60. which is equal to 0. Therefore, T1 is equal to T2 sin 30 plus T3 sin 60. तो यहाँ पे आपको T2 और T3 इनके वैल्यू आपको पता है. T3 कितना है 183.01 और T2 336.60. So I will write here 336.60 sin 30 plus 183.01 sin 60.
just calculate, you will get the magnitude of T1. Yes, 326.79, correct. 326.79. So this is the problem which was asked for 6 mark in winter 2022. सिंपल कनेक्टिंग केबल्स दिए हैं आपको, जस्ट वहां पे टेंशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग लामिस थ्योरम एंड इक्विलिब्रियम कंडीशंस. नेक्स्ट प्रॉब्लम, a wire rope is fixed at 2 points A and D as shown in figure. Weights 20 kilonewton and 30 kilonewton are attached to it at B and C respectively. At B and C respectively, the weights rest with portion AB and BC inclined at 30 degree and 50 degree respectively to the vertical. Find the tension in segments AB, BC and CD of the wire, and also determine the inclination of the segment CD to the vertical. The wire rope is fixed at 2 points A and D. So this is the point A and D. This is the wire rope which is attached to point A and D. So weights 20 kilonewton and 30 kilonewton are attached to it at B and C. The weights rest portion AB. तो ये जो वेट है पोर्शन AB और पोर्शन CD को क्या है, रेस्ट है 20 और 30 का, AB और CD को. And inclined, the weights rest with the portion AB and BC inclined at 30 degree and 50 degree respectively. ठीक है, ये जो वेट है 20 किलो न्यूटन का, या AB और BC को जो वेट आपका अटैच्ड है, तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया है वर्टिकल के साथ, 30 और 50. ओके, तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है टेंशन इन AB, BC एंड CD, एंड आल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ CD विद द वर्टिकल. ठीक है, so take down first step.
For the sake of convenience, let us split up the cables into two parts at B and C. तो फिर से पहला स्टेप जो है आपको जॉइंट सेपरेट करना है, स्प्लिट करना है जॉइंट को, और उस जॉइंट पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं वो आपको वहां पे शो करना है। जैसे कि पहला जॉइंट है बी, तो यहाँ पे ये फोर्स है, ये केबल है और ये आपका वेट है। सो आई विल ड्रॉ द फोर्सेस which act on the point B. So this is the weight 20 kilonewton. The angle of this is 50 degree. This is the joint B. Similarly, joint C. So this weight is 30 kilonewton. And this angle will be theta. That we have to find out. इस डायग्राम में देखिए, अगर ये 30 डिग्री है तो ये इनवर्स एंगल कितना रहेगा? 30 डिग्री रहेगा. So I will say here this angle will be 30 degree. And if you have to calculate this angle, so 180 minus 30, so it will be 150 degree. And for this side, this angle will be 180 minus 50, 130 degree. एट जॉइंट सी देखिए, अभी अगर आपका एंगल, ये एंगल 50 है तो ये एंगल कितना होगा फिर? दिस विल बी 50. So I will just write here this angle will be 50. और ये जो है आपके, ये जो एंगल है वर्टिकल फोर्सेस के, वो विद हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री एंगल. सो नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर स्प्लिटिंग द जॉइंट्स by applying Lami's theorem, at B, therefore so I will say here this is the tension 1, tension 2, this will be tension 2 and tension 2. आप इसको नॉमेनक्लेचर ऐसा भी दे सकते हैं. अभी ये जॉइंट है, ये फोर्स है आपका, तो टेंशन इन ए बी, टी ए बी ऐसा भी दे सकते हैं, या टी बी सी, टी सी डी. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. सो मैंने T1, T2, T3 ऐसा नॉमेनक्लेचर दिया है. सो बाय अप्लाइंग Lami's theorem एट B, सो T1 डिवाइड बाय साइन opposite angle 50 degree, which is equal to T2 divided by sin 150 degree,
which is equal to 20 kilonewton divided by 130 plus 30 sin 160 degree. Just take first and third term. T1 divided by sin 50 degree is equal to 20 divided by sin 160 degree. So T2 is equal to 20 divided by sin 160 into sin 50 degree. So therefore, yes, T2 is equal to 44.79. What is the unit? Kilonewton. Yes, this will be T1. After that, take second and third term. T2 by sin 150 which is equal to 20 divided by sin 160 degree. So T2 is equal to 20 divided by sin 160 into sin 150. 29.24. Yes, 29.24 kilonewton. ठीक है. अभी जैसे पहला अपना यहाँ पे तीन फोर्सेस है, लेकिन हमें यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है. इस फोर्स का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ वर्टिकल ये फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से इक्वेशंस ऑफ और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे. तो इस फोर्स को कैसे स्प्लिट करने का दो कंपोनेंट में, लाइक दिस. तो यहां पे देखो ये जो एंगल है, इस फोर्स का एंगल किसके साथ फॉर्म हुआ है, वाई एक्सिस के साथ बना है. तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, cos थीटा. T3 cos थीटा. सिमिलरली T3 sin थीटा. और इस फोर्स का एंगल वर्टिकल वाई एक्सिस के साथ ही फॉर्म हुआ है. तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, cos थीटा. T2 cos 50 एंड हॉरिजॉन्टल T2 sin 50. So take summation of vertical force is equal to 0. तो यहाँ पे जैसे कि वर्टिकल फोर्स पॉजिटिव और वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव हम लेते हैं. तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स है देखो, T2 cos 50, T3 cos थीटा और 30 किलोन्यूटन. ये तीन फोर्स यहाँ पे लेना है. So therefore T2 cos 50, T2 cos 50 अपवर्ड है, T3 cos थीटा प्लस T3 cos थीटा माइनस 30 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ इस इक्वेशन में आपको कौन सी वैल्यू पता है, T2 की. सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ T2, विल गेट 29.24 into cos 50 plus
T3 cos theta minus 30 is equal to 0. Just simplify this. So I will simplify this. T3 cos theta is equal to, ये टर्म यहां जाके दूसरे राइट साइड पे लेके जाइए उसको, कितना आ जाएगा वो 20 cos 50, this will minus, this will plus 30. Tell me the value of T3 cos theta. Yes, 11.20. So give the equation 1 for this. Similarly, take summation of horizontal forces which is equal to 0. अभी horizontal forces कौन से यहाँ पे T sin 50, T2 sin 50 minus T3 sin theta plus ये दो forces है T2 sin 50 और T3 sin theta. Just take it. T2 sin 50, this is negative, और दूसरा जो है आपका T3 sin theta which is equal to 0. फिर से आपको इस इक्वेशन में T2 की वैल्यू पता है, just put the values of T2. So therefore 29.24 sin 50, या सिंपल इसको ऐसा लिख लीजिए T3 sin theta which is equal to 29.24 sin 50. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा T3 sin theta का वैल्यू, ये कैलकुलेट कीजिए कितना आता है 29.24 into sin 50. Yes, 22.3940. T3 sin theta is equal to 22.40. So this is the equation number 2. Now after that, so divide this equation 2 by 1. इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, therefore T3 sin theta divided by T3 cos theta which is equal to 22.40 divided by 11.20. तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन डिवाइड किया है यहाँ पे T3 sin theta divided by T3 cos theta 22.40 by 11.20. So in this equation T3 will get cancelled. Sin theta by cos theta is nothing but yes tan theta. Therefore tan theta is equal to how much it is 2. So theta is equal to tan inverse of 2. So theta is equal to 63.43 degree. तो आपको यहां से थीटा मिल जाता है.
ठीक है, अभी आपको T3 की वैल्यू पता है क्या? नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये थीटा इक्वेशन 1 या 2 में आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई विल पुट दिस इन इक्वेशन 1। Put in equation 1. So therefore T3 cos 63.43 is equal to 11.20. So T3 is equal to 25.04 millimeter. So this is the T3. A sphere weighing 100 Newton is tied to a smooth wall by a string as shown in figure. Find the tension T in the string and reaction R from the wall. So this is the diagram. So let's suppose this is the sphere which is attached to sphere, and the angle between vertical wall and this string is 15 degree. और इसका वेट जो है स्फीयर का कितना है, वो 100 न्यूटन है। कहां पे एक्ट होगा वो? उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका सेंटर स्फीयर का सेंटर यहाँ पे है, तो इस डायरेक्शन में आपका वेट एक्ट करेगा विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो यहाँ पे देखो ये जो स्फीयर है कहां पे अटैच है, इस वॉल को है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक रिएक्शन आ जाएगा। तो इसका फ्री बॉडी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कीजिए। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा आएगा, so this is the free body diagram. तो सिंपल यहां पे आपको 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं पार्टिकल पे। ठीक है, तो आपको एंगल फाइंड आउट करना है और लामिस थ्योरम अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है, इस स्ट्रिंग का एंगल जो है विथ वर्टिकल वॉल कितना है, 15 डिग्री है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा फिर, दिस इज द इनवर्स एंगल। तो ये 15 है, मतलब ये भी क्या होगा, 15 डिग्री। तो आपको ट्रांसमिसिबिलिटी थ्योरम पता होगा। ट्रांसमिसिबिलिटी थ्योरम क्या कहता है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी थ्योरम आपको बताता हूं। अगर मैं यहाँ पे इस पेन को यहाँ पे फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कहां पे है, इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको ऐसा हम इंडिकेट कर सकते हैं ना, यहां से पुल टाइप फोर्स एक्ट किया, यहाँ पे सेम लाइन ऑफ एक्शन पे पुश किया और यहाँ पे पुल टाइप किया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा,
सेम रहेगा। वैसे ही ट्रांसमिसिबिलिटी थ्योरम आपको फ्री बॉडी डायग्राम में ऐड करने के बाद, जैसे लामिस थ्योरम हम कैसे डिराइव करते हैं कि each force is directly proportional to the sine of angle between the other two forces, बराबर है। बट ये फोर्सेस अभी ये यहाँ पे एक्ट हो रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको, इस डायरेक्शन में। अगर ये यहाँ पे एक्ट होता है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। तो इसको हम ऐसा शो कर सकते हैं। तो हम फाइनली फोर्स सिस्टम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, देखो दिस फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, तो दिस इज द ट्रांसमिसिबिलिटी थ्योरम ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है वो कितना है, ये 90 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ये टोटल कितना है, 180। 180 में से 90 डिडक्ट किया तो आपको मिल जाएगा ये एंगल कितना आएगा, वो 90 रहेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। और ये फोर्स का जो एंगल है T टेंशन और R, ये टोटल एंगल कितना रहेगा, 90 प्लस 50, ठीक है, 105। तो ये है आपका 105। सिमिलरली ये एंगल कितना रहेगा, दिस इज 90 डिग्री। ओके, 180 माइनस 15 माइनस 90, 180 माइनस 90 माइनस 15, तो ये एंगल आपको मिल जाएगा। तो ये कितना आएगा फिर टोटल एंगल, यस 161, 90 प्लस 15 105, 180 माइनस 105, 180 माइनस 105, 75। तो ये एंगल आपका 75 आ जाएगा। बट आपको ये एंगल, ये दो फोर्सेस का जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो ये एंगल हमने फाइंड आउट किया, लेकिन वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टेंशन, दिस फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स। सो 90 प्लस 75, हाउ मच इट इज, 165। तो ये एंगल कितना है आपका, 165, और ये आपको पता है 90 डिग्री, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो ये दिस विल बी 90 डिग्री। नाउ अप्लाइंग by applying Lami's theorem, therefore T डिवाइड बाय, अभी ये फोर्स है आपका, अपोजिट एंगल कितना है, 90 है, T डिवाइड बाय साइन 90 which is equal to second force, this reaction R, और अपोजिट एंगल 165, R डिवाइड बाय साइन 165, और लास्ट है 100 डिवाइड बाय साइन दिस एंगल which is equal to 105. So calculate first term and third term, will get T divided by sin 90 which is equal to 100 divided by sin 105 degree. Therefore T is equal to 100 divided by 105 into sin 90. 103.5. Yes, 103.53. What is the unit? Kilonewton. So this is the tension in the string. After that, calculate second and third term. R divided by sin 165 degree which is equal to 200 divided by sin 105 degree. So R is equal to 200 divided by sin
105 degree into sine 165 degree. So tell me the reaction R. Yes, 26.7. So I will write 26.8. Put it A ना 100 है ना? Yes, 100 है. So this will be 100. 100 divided by sine 105 into sine 165. A 200 Newton sphere is resting in a trough as shown in figure. Determine the reaction developed at contact surfaces. Assume all contact surfaces are smooth. तो ये ऐसा एक स्फीयर है और ये इसको ट्रफ बोलते हैं. This will be the angle with the horizontal is 60 and this will be 45. Next problem, two identical cylinders each weighing 500 Newton are placed in a trough as shown in figure. Determine the reactions developed at contact points. Determine the reaction developed at contact points A, B, C, D. Assume all points of contact are smooth. यहाँ पे ये सिलेंडर है, ठीक है. क्रॉस सेक्शन इसका सर्कल आएगा ऐसा. दो सिलेंडर यहाँ पे इस ट्रफ में रखे हैं. So this is the smooth surfaces and the angle of this smooth surface with the horizontal is 30 degree. तो यहाँ पे let's suppose this point is A, this point is B, this will be C and this will be. तो यहाँ पे आपको reactions find out करने हैं. Two like parallel forces of 50 Newton and 100 Newton act at the ends of rod 360 mm long. Find the magnitude of the resultant force and point where it acts. So this is the question which was asked for 4 marks summer 2019 for 4 marks. Two like parallel forces of 50 Newton and 100 Newton act at the ends of rod 360 mm long. Find the magnitude of the resultant force and point where it acts. So see, they have given so let's suppose this is the rod having length 360 mm. So at the end of this rod, what are the magnitude? 50 Newton and 100 Newton. So this is given. The length of this rod is 360
mm. Now we have to calculate the resultant of this force system, parallel force system है. तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और वो रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट होगा, वो रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट होगा ये फाइंड आउट करना है. सिंपल, दो ही अननोन है यहाँ पे, एक तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और वो रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट होता है ये फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए क्या यूज करना है आपको, इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज कर सकते हैं, Fx है क्या, यहाँ पे वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या यहाँ पे नहीं है, मतलब समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0. टेक समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0. In that we are consider here upward force is positive and downward force is negative. So therefore 50 Newton is downward, so minus 50 and minus 100. और यहाँ पे एक assume कीजिए इसका resultant. So I will just assume here this is the resultant which is situated at a distance x from this point, or you can say this is rod AB. So this is the resultant. So यहाँ पे कितने फोर्सेस है, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, और रिजल्टेंट भी यहाँ पे होगा, तो वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि दोनों फोर्स कैसे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो आई विल जस्ट राइट हियर, टेक हियर नेगेटिव साइन फॉर द रिजल्टेंट which is equal to 0. So R is equal to, yes, 150. What is the unit? Newton. अब यहाँ पे ये माइनस 150 आया है, ठीक है. माइनस क्या इंडिकेट करेगा, डाउनवर्ड. देखो ये डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे. एक टास्क हो गया अपना. दूसरा टास्क है ये रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट होगा ये फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए कौन सा इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करना है, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0. अभी कौन से भी पॉइंट को आप समेशन ऑफ मोमेंट लेना है, उसके बाद आपको जो x डिस्टेंस है वो मिल जाएगा. नाउ कंसीडर x is the distance between resultant from point A. तो यहां पे हमने अज्यूम किया है ये r का जो डिस्टेंस है ये x कंसीडर किया है फ्रॉम पॉइंट A. सो नाउ टेक समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट. अभी कौन से पॉइंट पे मोमेंट लेना है आपको, ये पॉइंट को मोमेंट लेना है. यहां पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये x डिस्टेंस जो है तो इस पॉइंट से कंसीडर करना पड़ेगा. तो हमने यहां से किया है तो एट पॉइंट ए हम मोमेंट लेंगे. सो आई विल राइट हियर समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0. तो इस पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस है क्या वहां से, कुछ डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है क्या, नहीं है, उस पॉइंट से एक्ट हो रहा है तो वो फोर्स 0 हो जाएगा. उसके बाद देखो ये आर रिजल्टेंट जो है x डिस्टेंस पे सिचुएट किया है, कंसीडर किया है हमने, तो r इंटू एक्स इज द मोमेंट. r इंटू एक्स इज द मोमेंट. तो यहाँ पे देखो ये r डाउनवर्ड है, ये कैसा रोटेट होगा, क्लॉकवाइज. ओके, क्लॉकवाइज रोटेट होगा. तो आई विल कंसीडर हियर क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव. सो आई विल राइट हियर देयरफॉर r इंटू एक्स, R इंटू एक्स. सेकेंड फोर्स है आपका 100 न्यूटन, 100 इंटू 360, ये भी कैसा है, क्लॉकवाइज ही है. सो प्लस 100 इंटू 360 इज इक्वल टू 0. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ R minus 150 into x which is equal to
माइनस 100 इंटू 360, ये टर्म राइट साइड पे लेके गया. सो दिस माइनस विल गेट कैंसल. x इज इक्वल टू 100 इंटू 360 डिवाइड बाय 150. So you will get the distance of resultant from point A. 240. Yes, correct. X is equal to 240 mm. तो ये क्वेश्चन पूछा था समर 2019 फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था.